अगर आवाज कहीं पे भी कट रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग। सो हमने परचेसिंग डॉक्यूमेंट टॉपिक हमने कवर किया था, लाइक परचेज रिक्विजिशन, request for quotation, purchase order, quotation and purchase order, and scheduling agreement. There we have defined the amount of like net price we have defined. वहाँ पे हमने net price define किया था, like what is the net price of the particular material. हमने सिर्फ base price वहाँ पे add किया था. Now we are going to add the additional prices. Additional price मतलब क्या होता है? Like for example, let me give an example like gross price. For example, this is the gross price of a material. Like I will take 500. Can you hear me, guys? आवाज आ रहा है ना मेरा सबको? यस सर आ रहा है। ठीक है। Net price. This is just one condition type. So I will add a discount on gross. I will add a discount on net. So these are the type discount. These are the some condition types which we haven't covered, like which is not in our purchasing document. अभी फॉर एग्जांपल एक मटेरियल में सिलेक्ट किया, उसका हमने परचेस ऑर्डर में प्राइस दे दिया 500. सो इन प्राइसिंग प्रोसीजर वी आर गोइंग टू ऐड द कंडीशन टाइप्स. हम कंडीशन टाइप्स यहाँ पे ऐड करेंगे. लाइक देर आर मेनी कंडीशन टाइप्स. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लाइक फ्रेट चार्जेस है, वैट कितना लगा रहे हम लोग, जीएसटी कितना है, डिस्काउंट कितना देना है एक प्राइस पे. सो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट वी हैव टू डिफाइन द प्राइसिंग प्रोसीजर. जो हमने वो वाला पार्ट में हमने नहीं देखा, बिकॉज दैट इज ओनली दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लाइक उतना ही प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल उसका एक बेस प्राइस हमने लिया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ pricing procedure over here. So let me explain you what we are going to see. What is it? 21 and 22. I will display the purchase order. यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? PBXX, SKOP, इसके T0. These are the gross price, gross discount on any other material. So which is given over here. So this is a standard document. हाँ? मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको ME21 पे जाके डायरेक्टली कंडीशन टाइप दिखा सकता हूँ. एंड वी कैन जस्ट फाइंड आउट द सेशन लाइक विदिन हाफ एन आवर और विदिन 15 minutes. But you should know like how what are the condition types of this particular these sessions. Like for example यहाँ पे इसका कंडीशन टाइप क्या है? Just give me 1 minute. आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, मैंने म्यूट किया था अभी जस्ट. ओके. Now I will show you like how we can just copy the data from PBXS, which is a standard document type. For example, gross price. हर एक के लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइंड है. ग्रॉस प्राइस के लिए है, डिस्काउंट ऑन ग्रॉस के लिए है, और डिस्काउंट ऑन नेट के लिए भी है. सो वी विल सी सम ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप्स ओवर हियर. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन. So our first point over here is, first one is define condition type. What is condition type? Can you सर explain? द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट. For example, definition, if I want to give a definition to you guys, it's like let me just open it.
Okay, let me open it. Condition type SAP reference IMG, material management, where it is purchasing. We are going to see the conditions. We are going to see different types of conditions and price determination. The practical notes which I have created, I have not written the T codes over there. Okay. So the first point is called as condition type. The T code is OMR2. So the condition type means, for example, definition बताने जाओ तो it's like it has specific features of daily pricing activity. Using condition type for each pricing, use condition type for each pricing, discount or discount on particular goods. डे टू डे लाइफ में हम जो कंडीशंस देते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल फ्रेड, फ्रेड का एक कंडीशन टाइप है, डिस्काउंट, डिस्काउंट का एक कंडीशन टाइप है. सो दीस आर द कंडीशन टाइप्स. सो वी आर गोइंग टू सी 3 to 4 कंडीशन टाइप्स ओवर हियर. अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल डिफाइन द कंडीशन टाइप्स. आई जस्ट ओपन इट. So the condition type, I will start the first condition. Double click on this condition. Now I will start the first condition, which is called as gross price. The gross price of a material. The gross price of standard document is PPXX. As you can see, gross price. This is one condition type. Discount on gross. This is another condition type. Discount on net. This is another condition type. There are a lot of condition types. So I'll start from the first, which is called as gross price. I'll select this line and I just click on copy. Same. You can just copy it. I will just edit this one. I will select TVP1. I'll just take it as an example. TVP1. Gross price. TVP1. Okay. I just create this one, and this all data I do required because I'm creating the particular condition type which is called as gross price. Press enter. I have not saved the data yet because I'm going to create another condition type. Okay, so let me add over here condition type. कोड क्या था मेरा? T1. Okay, this one was gross price. This one is for gross price. Now second condition type I have defined, which I'm going to define. The first one is PBXS, which I have defined. I will select the second condition type, which is for discount on gross. It's called as RA01. These are the standard document type defined by SAP. Like discount on net. RA01, discount on net. I'll just select this one. I will define my own new code over here. Like for example, TVP2. I'll just take an example. I'll just press enter. मैंने सेव नहीं किया. Two conditional types I have defined. This one is called as TVP2, and it was for cross on net. Sorry, discount on net. Okay. So I will take third condition type, which is I will show you, which is called as RA00, which is discount on cross. Let me add over here. RA00. I just select this one. Click on copy button. RA00. I will just edit this one. I will just add a new code. I will create a new code. TV P3. Press enter. Now I will save the data.
हमने 3 कंडीशंस कौन कौन से देखे? सर ग्रॉस डिस्काउंट और ये कौन सा था सर? डिस्काउंट ऑन ग्रॉस। ठीक। 3 कंडीशंस टाइप्स है डिस्काउंट और आई विल जस्ट ऐड ओवर हियर, कोड भी मैं स्टैंडर्ड कोड डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। हमने सिर्फ 3 कंडीशंस लिए हैं, दिस आर द 3 कंडीशंस टाइप्स व्हिच वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, ठीक है, व्हिच वी हैव डिफाइंड एज अ कंडीशन टाइप्स। द सेकंड इज कैलकुलेशन स्कीमा। कुछ पता है? एनीवन कैन सी व्हाट एग्जैक्टली कैलकुलेशन स्कीमा इज? So the basically I will just explain you what exactly it is. Calculation schema, like for example, it is a structure which combines a different number of pricings. For example, these are the conditions like 1, 2, 3. It combines all these 3 points, which is called as calculation schema. It is a structure which combines a different number of pricing conditions. जो हमने 3 define किया, it combines all these conditions. So now I will define the second point. ये वाला first point था. This I will define the second point over here. Calculation schema. Calculation schema. So press enter. I will save the data. Save. Data was saved. तीन condition types हमने define किया. First one is gross price. Second one is discount on net. Third one is discount on gross. ठीक है. Now अपन ने TPS 3 नाम नहीं दिया, वहाँ पे सिर्फ TVS ही नाम दिया है सर, वो चेंज करना पड़ेगा ना एडिट। कहाँ पे? यहाँ पे आपने TVP 3 लिखा है, लेकिन अभी जो आपने सेव किया वहाँ पे TVP ओनली है, वहाँ पे 3 नहीं किया है। Okay, let me check. I guess it was created. Let me check. TVP3. TVP करेंगे तो आ जाएगा सर। हाँ। 3 नहीं है, TVP करेंगे तो आ जाएंगे सर। ओके मैंने 3 नहीं लिया था, राइट। ओके ठीक है, मैं इसका कोड ही टीवीपी ले लेता हूँ। यस सर, ओके। ठीक है, हम जस्ट डिफाइन दिस। अभी हो गया। आई विल गो टू कैलकुलेशन स्कीमा। ये जो टॉपिक है ना, इट इज बिट लेंथी टॉपिक, बट यू नो द कंसेप्ट अगर समझ में आएगा ना आपको, देन इट विल बी वेरी इजी। जो हमने वहाँ पे यूज किया था परचेसिंग डॉक्यूमेंट में, इट वाज लेंथी। कंसेप्ट यूज करोगे, यू इफ यू गेट द कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रोसेस इट। आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कंडीशन टाइप्स। अभी हम लोग क्या करें, तीनों को मिक्स करें, विच इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन स्कीमा। तीनों को हम मिक्स करेंगे। आई जस्ट ऐड ओवर हियर डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा। टी कोड इसके सामने, यू कैन जस्ट नोट डाउन द टी कोड्स। ठीक है, नाउ आई विल क्रिएट अ कैलकुलेशन स्कीमा ओवर हियर। मैं एक नया यहाँ पे एंटर करूंगा, न्यू एंट्रीज, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेशन स्कीमा। सो आई कैन कीप फॉर एग्जांपल टीवी सीसी दे दूंगा, जस्ट पीपी दे दूंगा ये, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैलकुलेशन स्कीमा। अगर यहाँ पे देखो, विच इज प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर। सो उसके लिए मैंने ऐड किया TVSPP। आई विल जस्ट डिफाइन न्यू कोड। आई विल राइट ओवर हियर TVSPP। कोड्स लिख के लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। TVSPP कैलकुलेशन स्कीमा। प्रेस एंटर। दैट्स इट, मैंने प्रेस एंटर किया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट select this row and click on controlling area, sorry, control data, new entries। अभी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो what we do is that जो हमने 3 कंडीशन डिफाइन किए थे, बस वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, ताकि जो हमने स्कीमा जो डिफाइन किया है कैलकुलेशन स्कीमा, it contains all that condition types. So I will just add one by one. 1, 2, ओके। कंडीशन टाइप्स क्या क्या है इसके? कंडीशन टाइप्स आई जस्ट ओपन हो गया, या फिर डायरेक्टली जो हमने जो क्रिएट किया है वो दे सकते हो।
the one which is created like TV P1. यहाँ पे टीवी P1 है, टीवी P2 है और टीवी P भी होगा यहाँ पे, इट इज सर्च यहाँ पे है. So I will take one by one. I will take second. Okay, I will take second as well. TV P2. Third one is TVP. ठीक है. From and to क्या होता है, I will let you know. So basically यहाँ पे 3 टैब्स है which is called as manual, required and यहाँ पे है statistics, and fourth one is print. First of all मैं print का बता देता हूँ what exactly it is. Here we have the 4 options. X, S, यहाँ पे अलग से we have different options. So we have to select only 2 values over here, which is called as V or S. Sorry, X or this particular S. X मतलब क्या होता है, it is called as printing at item level. S होता है printing at total level. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक कंडीशन टाइप मतलब दिस इज आवर फर्स्ट आइटम, इट इज नॉट अ टोटल, हम कोई टोटल नहीं कर रहे. So basically we will just selecting that item level because the first condition type is called as our first item. Or second condition type which is gross price or discount on net or discount on gross, that will be our item level. Total जब आएगा when we do a total of all these condition types. So all this for all these 3 particular uh, items we just have to select print at item level. हमें total नहीं देखना है, we cannot select total. Why? Because हमने सिर्फ 3 condition types define किया है. I just select this condition X, यहाँ पे भी I will select X because these all are at item level. When we can select S वो मैं आपको बताऊंगा after selecting this one. Okay, so now for example यहाँ पे मुझे total करना होगा, I will just add over here total जो भी मुझे करना है, I can add a total over here and I will select S over here. जब total करना है तब हमें S लेना है, but now we have defined only a particular condition types. So I will just select, press enter. Okay, I just have to select 0, 1 and 2 and 2. काउंटर वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है एक्चुअली, यहाँ पे वो 0 से लेता है. सो स्टेप कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 बट काउंटर शुड बी फ्रॉम 0. ओके, एज यू कैन सी द डिस्क्रिप्शंस ओवर हियर, टीवी P1, ये 2 और ये 3. एक्चुअली डिस्क्रिप्शन थोड़ा यहाँ पे मैंने दोनों तरफ नेट दिया है. सो दिस वन इज क्रॉस, सो गलती से वहाँ पे दोनों तरफ मैंने नेट लिखा है. वी कैन चेंज द डिस्क्रिप्शन एज वेल. So the one which is called as TVP2 is discount on gross. So it's not a discount on net. Description में गलत हुआ है, बस that's it. So just press enter and I will save it. What we have did over here is that ये 3 conditions हमने define किया. ये तीनों condition types we have added over in calculation schema. ठीक है, वो हमने ऐड क्यों किया ये आपको एट द एंड ऑफ द सेशन पता चलेगा. फिर मैं जब ME51 या ME21 करूँगा तब यू कैन जस्ट रिलेट इट. यहाँ तक समझ में आया गाइस? सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेना, प्रोसेस बिट इज बिट लेंदी, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. हाँ सर, ये तो आ गया. यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा. हाँ मैं बताऊंगा आज, जब हम आज लास्ट टॉपिक तक जाएंगे ना जहाँ पे हम लोग कंडीशंस डिफाइन करेंगे. मतलब कोई प्राइस मटेरियल लेंगे, मटेरियल लेने के बाद उसका एक प्राइस होगा 1000 फॉर एग्जाम्पल उसका प्राइस है, तो वो हो गया अपना ग्रॉस प्राइस. ठीक है, तो ग्रॉस डिस्काउंट ऑन ग्रॉस कितना देंगे, 5% हमने दे दिया तो वो हो जाएगा, वो 5% डिडक्ट कर देगा. फिर 10% निकाल दे तो वो हो जाएगा 900 रुपीज़ का.
तो मैं डिस्काउंट ऑन नेट दूंगा फिर से 10%, वो हो जाएगा 800 रुपीज़। तो ये जो कंडीशन टाइप हमने परचेसिंग डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया है क्या? हमने नहीं किया। तो ये कंडीशन टाइप हम लोग यहाँ देखेंगे। तो उसके लिए हमें ये बैकएंड के लिए ये कैसे क्रिएट होता है, कंडीशन टाइप क्या है, कैलकुलेशन स्कीमा क्या है। मैं डायरेक्टली आपको ME21 टी कोड डाल के वहाँ पे स्टैंडर्ड कोड सिलेक्ट करके वहाँ से आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे डाल दो हो जाएगा। बट यू गाइस शुड नो व्हाट इज कंडीशन टाइप, हाउ टू क्रिएट इट। सर ये हमें ही करना पड़ता है या फिर बैकएंड वाले करते हैं ये सब? दिस इज क्रिएटेड, दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ये क्रिएटेड अच्छा, तो होता है। आप ऐसे हमें सिखा रहे हो, ये ऐसा होता हाँ, है? ये आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन टाइप क्या है, कैलकुलेशन स्कीमा क्या है, कहाँ से क्रिएट होता है, यू शुड जस्ट नो इट। ओके। ये इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है सर ये सब भी? हाँ, मुझे पूछा गया था जब मैं विप्रो में गया था ना, तो मुझे प्राइसिंग कंडीशन पूछा गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए इसलिए मैं भी इंटरव्यू में पूछता हूँ ये क्वेश्चन। तो इसमें मैं ओके। ये चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स को सिर्फ पता होता है कि हाँ हम लोग ME21 में जाएंगे तो फिर वहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे। कंडीशंस ऐड कब करेंगे, तो क्रिएट कहाँ से करेंगे, उसका कोड क्या है, वो सब डिटेल्स हम पूछते हैं। सो यू गाइस शुड नो इट। सर इसका टी कोड भी लिख दीजिए ना एक बार। ME21 सर प्राइसिंग का हो मैं गया ना? क्या, देखो मैं जो टी कोड्स है ना, मैंने नोट्स में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम खुद वो तुम खुद टी कोड्स निकालो। फॉर एग्जांपल ओके। कहाँ से, या जब हम इसको जब मैंने इसको सेव किया, बैक बैक बैक, यहाँ से टी कोड, ये जो लास्ट 4 डिजिट्स है ना, MER5 का टी कोड है। तो मैं चाहता कि तुम ओके। आप लोग खुद निकालो, इसलिए मैंने बहुत से टी कोड्स बाहर से जगह पे लिखाने वाले, बिकॉज यू शुड गो एंड आइडेंटिफाई एंड राइट इट। इवन जब ऑफलाइन लेक्चर लिया था तब मैंने परचेसिंग डॉक्यूमेंट का टी कोड मैंने लिखा ही नहीं था नोट्स में, फिर बाद में मैं जाके वो नोट्स ऐड किया मैंने वहाँ पे जाके। सो सो यू गाइस शुड राइट दिस टी कोड ऑन योर ओन। अगर आपको चाहिए तो ओके। आई कैन प्रोवाइड इट। ठीक है, ये 3 क्लियर, कैल्कुलेशन स्कीमा हो गया। नाउ वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है, विच इज अ स्कीमा ग्रुप। स्कीमा ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज स्कीमा ग्रुप? सो बेसिकली स्कीमा ग्रुप क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। Schema group are used to map the pricing determination process based on vendor purchasing organization, vendor और purchasing organization. So इसमें हम क्या करते हैं, we link schema group to purchasing organization। मतलब यहाँ पे क्या आया, schema group in the sense linkage। Schema group are used to map the pricing determination process based on vendor और purchasing group। तो अपना ये जो टॉपिक है, अपना ये टॉपिक अभी लिंक कर रहे हैं हम लोग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब ये जो अपना पूरा टॉपिक है, हाँ, इसको हमने कभी लिंक किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल वेंडर से लिंक किया है अभी तक? नहीं किया। वी हैव टू डू द लिंकेज, बिकॉज तभी तो हमें पता चलेगा कि इसी मीटर का प्राइसिंग हो रहा है। सो स्कीमा ग्रुप वो डिफाइन करेगा कि वी हैव टू लिंक दैट स्कीमा ग्रुप लाइक वेंडर टू परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में हमने जो 2-3 पॉइंट क्रिएट किए हैं, दैट शुड बी लिंक टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। So third point is schema. Okay, I will go to the code schema group. यहाँ पे है MER6 टी कोड दिया है वहाँ पे। So the first point I will go is that यहाँ पे दिया है schema group for vendor। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल schema group for vendor दिया है। So I click on new entries, एक नया कोड मुझे क्रिएट करना है which will be only 2 digits। So I will create 2 digits, ये बहुत डिफिकल्ट है, यूनिक की चाहिए यहाँ पे। So I'll take for example P1, let's take it। ये कौन सा डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, स्कीमा ग्रुप ऑफ वेंडर। स्कीमा ग्रुप ऑफ वेंडर, ठीक है। प्रेस एंटर, ओके। कोड कोई कोड वहाँ पे नहीं है, सो P1 इज ओके। सो स्कीमा ग्रुप वेंडर, सो यहाँ पे अपना क्या है, स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर इज P1। प्रेस एंटर एंड सेव। मैंने यहाँ पे एक कोड क्रिएट कर दिया विच इज स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर। ठीक है,
ये हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने क्रिएटेड है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये लिंक हो जाए प्राइसिंग प्रोसीजर. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस कोर्स. और स्कीमा को फॉर वेंडर इन द सेंस, पता है ये हम लोग कहाँ पे देंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ. XK03 यहाँ पे मैंने दिया है वेंडर, यहाँ पे मैंने अपना कोड दे दिया. देखो यहाँ पे दिख रहा है स्कीमा ग्रुप वेंडर. वो जो हमने दो कोड अभी जो डिफाइन किया था ना, वो हम देंगे यहाँ पे. जो P1 है ना, वो P1 आएगा यहाँ पे. ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था, मैंने ऑलरेडी लिंक किया था. एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो ट्रायल वर्जन पे है ना, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है. सो yesterday एंड टुडे मॉर्निंग आई हैव प्रोसेस सम प्राइसिंग प्रोसीजर. कुछ स्टेप्स में इश्यूज आ रहे हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल MA20 जो अपना लास्ट स्टेप है, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है. सो दैट वी हैव टू सॉल्व इट. वो उनका इंस्टीट्यूट से भी फ़ोन आया था कि कुछ इश्यूज हो रहा है हर एक मॉडल में. सो वी हैव टू आई हैव टू वर्क ऑन इट. मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इश्यूज आ रहा है. सो एज अ डेमो मैंने ऑडियो करके कर लिया था, वहाँ पे 11 सेलेक्ट कर लिया था. सो नाउ आवर कोड विल बी P1. आई विल ऐड दैट कोड इनटू वेंडर लेटर ऑन. सो नेक्स्ट स्टेप, I go back. Second step is schema group of purchase organization, which we have to create. Same, new entries. Schema group of purchase TV PP ले लेता हूँ. Schema group for purchase, schema for purchase organization. और just press enter and save. लास्ट पॉइंट अपना है, the last point is assign or assignment of schema group to purchasing organization. Now we have to assign the schema group to the purchasing organization. I will go to position. यहाँ पे new entries तो है नहीं, so no need, there is no confusion created. So we click on position. And what is the purchasing organization? Purchasing of क्या है? TV5. TV5. Okay. So here we have to add a schema group purchasing organization which we have created just now. कौन सा कोड है वो अपना? TVP. 11 नहीं सर. ये वाला purchasing group ना. Schema group purchasing organization. Schema group purchasing organization. Now just add it, press enter and save. इस स्टेप में क्या वो पता चला आपको, यहाँ पे स्कीमा ग्रुप में हमने क्या किया, हमने जो अपना इंटरफेस क्रिएट किया था उसके वहाँ पे हमने प्राइस प्रोसीजर लिंक कर दिया, ताकि अब जो भी प्राइसिंग प्रोसीजर परफॉर्म होगा, प्राइसिंग प्रोसीजर वो कंसिडर किया जाएगा विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ यू गेटिंग लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या हो रहा है. इंटरफेस स्ट्रक्चर हमने पहले क्रिएट किया, मटेरियल क्रिएट किया, मटेरियल को भी लिंक किया इंटरफेस स्ट्रक्चर से, वेंडर क्रिएट किया, वेंडर को भी लिंक किया वहीं पे, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हमने, परचेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. सो एवरीथिंग इज लिंक्ड ओवर देयर. अभी हमने क्रिएट किया प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे मैंने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डाला. So each and everything is related to the first topic, which is dependent on on each of them, on one another. So it's very important you should know the codes. T codes भी पता होना जरूरी है, और ये जो codes हमने जो डिफाइन किया था ये भी पता होना जरूरी है. यहाँ तक क्लियर गाइस? हाँ सर, अभी तो ये तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा. आएगा थोड़ा. एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है. Okay, now I'll go to the next step, which is our define schema determination. Define schema determination. So I'll just go over here, or step like for example define calculation schema for standard purchase order.
क्यों ये स्टेप क्यों कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर कैसे कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग अपना आखिरी स्टेप वही है, ME41 ME21 परचेस ऑर्डर पे ही हमें काम है वहाँ पे एक्चुअली, वहीं पे तो हमें प्राइसिंग देना है, कंडीशन टाइम्स वहीं पे तो देना है। सो देयर नाउ आई क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, यहाँ पे तीनों कोड्स मैंने डिफाइन किया है। सो व्हाट इज माय स्कीमा ग्रुप परचेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या है यहाँ पे अभी? TVPP. यस राइट, I selected this one. What is my schema group vendor? TVP. Schema group vendor क्या है? P1 है सर, P1। Perfect. And what is my this procedure? ये क्या है? ये वाला क्या रहेगा? What is my procedure? This one, guys. term and conditions. Schema, calculation schema. This we are adding. ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं? Why we are not adding this one, this 4 step? यहाँ पे ये 3 step हम लोग क्यों ऐड नहीं कर रहे? Condition type ये तीनों. Why? Because we have already maintained these condition types in this calculation schema. Indirectly ये भी लिंक हो रहा है इसके साथ. So now Okay. यहाँ पे पता चला ये 3 स्टेप which is over here लिंक हो चुका है. यहाँ पे आ गए वेंडर का P1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया अपना कैलकुलेशन स्कीमा, और इसके अंदर है अपने कंडीशन टाइप्स which is indirectly going to be linked with each other. ठीक है, just press enter and I will Okay. save it. अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा what exactly is Yes, going sir. on. ठीक है, fine. हाँ. Now ठीक है, now we have to do one more thing which is over here we have to go over define condition type, फिर से वहाँ पे जाना है. Why? I'll just explain you why we can go there. Define condition type. Now हमने सबसे पहले यहीं पे आके, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, हमने 3 कंडीशन टाइप डिफाइन किए थे. ठीक है, अब यहाँ पे आके once again I will open that codes which I have created manually, like PBXX से कॉपी करके मैंने कुछ अलग कोड डिफाइन किया था, 3 अलग अलग कोड. So I will open it once again. TVP1. P1 यहाँ पे डालूंगा. I will just open this code. I will double click on this name, और यहाँ पे मैंने जो प्राइसिंग प्रोसेस जो कोड क्रिएट किया है which is called as this one TVSPP, I will just add that code over here and just save it. अभी ये कोड मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया. Same I will be adding this code to these another 2 condition types. So I'll go once again back, click on position, I will select TVP2, I will add that code over here. I will double click on this one. ओके, यहाँ पे मैं नई चीज़ कर पा रहा हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको है ना क्रॉस कर, यहाँ पे मैं दे दूँगा क्रॉस, जो कौन सा एक्चुअली क्रॉस था. आई विल ऐड दिस कोड ओवर हियर, आई विल सेव. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन टाइप? डिस्काउंट ऑन नेट. TVP. TVP राइट, हाँ, डिस्काउंट. TVP है, डिस्काउंट ऑन नेट. नेट है. यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से, यहाँ पे मैं कोड डालूंगा एंड आई हैव लिंक्ड दिस वन एज वेल. यहाँ पे तीनों स्टेप मैंने लिंक कर दिए. आई जस्ट सेव दिस. Okay. आई नो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि बहुत कुछ लेंदी हुआ है या फिर थोड़ा सिर के ऊपर से जा रहा है, बट दिस आर ओनली 3 पॉइंट गाइस. इफ यू जस्ट कुछ अपना नजरिया चेंज करके देखोगे ना, यहाँ पे मतलब थोड़ा अलग नजर से देखोगे, तो वी हैव क्रिएटेड ओनली दिस 3 कंडीशन टाइप्स. हमने ये वाला पॉइंट क्रिएट किया जहाँ पे हमने तीनों पॉइंट ऐड कर दिया इसमें कैलकुलेशन स्कीमा में. उसके बाद हमने यहाँ पे 3 कोड अलग अलग से डिफाइन किए, और हमने फाइनल स्टेप क्या किया, तीनों को एक दूसरे को लिंक कर दिया. दैट्स इट, वी आर जस्ट लिंक्ड इट.